Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 10 and we are doing chapter number 10 and the topic is acid, base and salts. We have started the topic of salt. We did the definition of salt. What are salts? Salts are ionic compound. The first part of the salt is metal ion and the second part is the negative part of acid from which that salt is formed. In this table you can see some acid, their salt name and the example. Then we did the neutralization. Neutralization is a process in which an acid and base are mixed and salt and water is formed. And then we did the types of salt, acid salts and normal salt. Salts which are formed by the complete neutralization of replaceable hydrogen atom are called normal salts, and that the salts which are formed by the partial neutralization of hydrogen atom are called acidic salt. Then we did the examples. Here you can see acidic salts and normal salt. In this we did the examples of acidic salt and normal salt. Then we come to the self-assessment 10.6, in which you have to classify salts as normal or acidic, and this is salt. You can see in the pictures sodium sulfate, that is acid salt, normal salt, acid salt and normal salt. You can see the difference where hydrogen is present, that is acid salt, and where there is hydrogen is absent is called normal salt. Now the next topic is method for making salts. There are 5 methods for making salt: acid plus base, salt plus water. When we mix acid plus metal oxide, they form salt and water. Acid plus metal, they form salt and hydrogen. Number 4 is acid plus metal carbonate, and they form salt plus carbon dioxide plus water. Next is salt plus salt, makes salt and salt. आपने ये क्या करना है कि इक्वेशंस के साथ इन मेथड्स को लर्न करना है, याद करना है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ द and one more thing, these are very important, so you have to learn it. Next is the uses of salt. Salts are used for the preservation of food, यानी खुराक को महफूज रखने के लिए जो है salts यूज़ होते हैं और उसे ख़राब होने से बचाते हैं. पुराने ज़माने में जो है ये भी एक तरीका था कि फलों को और सब्ज़ियों को सुखाया जाता था और फिर उनको बॉयल किया जाता था. बॉयल करने के बाद खुश्क कर दिया जाता था और फिर सॉल्टिंग यानी उस पर नमक वगैरह लगा के उसे महफूज कर दिया जाता था. लेकिन आजकल की मॉडर्न एज में अब सॉल्ट के साथ क्या प्रिजर्वेटिव्स भी जो हैं वो ऐड किए जाते हैं. और मैनी फूड्स आर ग्रोन और प्रोड्यूस इन वन लोकेशन एंड देन सेंट अक्रॉस द कंट्री और इवन ओवरसीज़, यानी जब एक जगह खुराक उगाई जाती है तो उसको फिर दूसरी जगह पे पहुंचाना होता है. तो इसकी वजह से क्या है कि उसे महफूज रखना ज़रूरी है. सिर्फ मुल्क में नहीं, मुल्क से के बाहर के हिस्सों में भी उसे भेजना होता है, जिसकी वजह से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए बगैर उसको महफूज नहीं किया जा सकता. These foods would spoil long before they reach their destination, और वो अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही ख़राब हो सकती हैं. तो बहुत से salts such as sulfides and benzoates are being used in food for thousands of years. Here, with the grace of Allah, we completed our chapter. Now I will one by one review the whole self-assessment exercise, ताकि वो बच्चे
वो स्टूडेंट्स जिनसे मिस हो गई है वो दोबारा से रिव्यू कर लें। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये चैप्टर की एक्सरसाइज बहुत लेंथी है, तो जितना वर्क आप बुक पे कर सकते हैं आप कर लें। सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सेंड कर चुकी हूँ। नाउ वी कम टू द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.3। इसमें आपने सिंपली बताना है कि एसिडिक है या नॉर्मल है। अब आप वैल्यू देखें। हाइड्रोजन आयन की वैल्यू है 3 × 10⁻³ मोलर। ये वैल्यू 1.0 × 10⁻14 की वैल्यू से ज़्यादा है, तो आप सिंपली क्या लिख देंगे इसके सामने, दैट सोल्यूशन इज़ एसिडिक। नेक्स्ट में भी आप हाइड्रोजन आयन की वैल्यू गिवन है, दैट इज़ 4.2 × 10⁻³ इट इज़ अगेन ग्रेटर दैन 1.0 × 10⁻14। ये KW की वैल्यू थी जो हमने पहले कैलकुलेट की थी। सो द सोल्यूशन इज़ एसिडिक, but when there is given the concentration of hydroxyl ion, then you have to calculate the value of hydrogen ion in this way. I have calculated it for you. आप KW जो हमने KW फाइंड आउट की थी इक्वेशन फॉर आयोनाइजेशन, आप लिखेंगे, आप उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे और इस तरह से ये इसका पूरा आंसर आएगा। मोलर लिखेंगे तो 10⁻11 इज़ लेस देन 10⁻7, that's why solution is basic. नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज 10.4। मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ और अब आपको एक दफ़ा फिर से ये बता रही हूँ कि 3 इंडिकेटर्स के नाम लिख लें कोई से भी। फिर उसके बाद ये pH पे आपने देखना है कि pH 9 पे येलो होगा, मैंने सारा डिटेल में बताया था कि रीज़न क्या है। और फिर इसके बाद फिर कौन सी pH पे जो है वो सोल्यूशन जो है कलर ब्लू इम्पार्ट्स करता है, तो वो 9 है, क्योंकि 7 पे तो वो चेंज होना स्टार्ट होता है ब्रोमोथाइम ब्लू 7 पे, तो 9 पे जाके उसका कलर जो है वो चेंज होगा। नेक्स्ट असेसमेंट इज़ 10.5। इसमें आपने फार्मूलाज के थ्रू इक्वेशन लिखनी है। ये मैं यहाँ फोकस कर रही हूँ। हाइड्रो ऑक्साइड सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और इट मैगनीज, मिल्क ऑफ मैगनीज इज़ यूज टू एंटीसिड, यानी एंटी एसिड उसमें मेडिसिन में यूज़ होता है। न्यूट्रलाइजेशन एक्सेस स्टमक एसिड। अच्छा जी, यहाँ पे आप ये देखें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2HCl, इट्स मेक MgCl2 और 2H2। ये आपने जस्ट इसकी इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट में भी आपने इक्वेशन लिखनी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ KOH + HCl, इट विल फॉर्म KCl + H2O। अब आप मुझे बताएं KCl सॉल्ट है या एसिड है, HCl सॉल्ट है या एसिड है। नेक्स्ट में आपने बैलेंस करना है इक्वेशन को, ये आप देख लें, मैंने थोड़ा इसको फोकस किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं और लेबल उसकी बैलेंस कर लें। ठीक है जी, हियर वी फिनिश द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 10.5। दिस इज़ असेसमेंट 10.6 which we have done in the start of the lesson. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, ये साइड बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इंशाल्लाह मैं इनके क्वेश्चंस बना के आप लोगों को सेंड कर दूँगी। वो क्वेश्चन रैंडम होंगे, आपने खुद से पढ़ना है उन क्वेश्चंस को और उनके आंसर जो हैं फाइंड आउट करने हैं। वो आंसर्स आपने खुद से पढ़ के ढूंढने हैं। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल सेंड यू द complete solved exercise of this unit. Allah Hafiz.